Good morning, students. So today this is our first online class. I welcome to you all to the online session. So in our regular classes, uh, I was teaching you the second chapter, components of food. So let me just first give you a short revision of the topics which I have already covered in the class. So what are the various components of food? Carbohydrate, proteins, fats, and others, vitamins, minerals, and water. Okay. So what is the function of carbohydrates? Carbohydrates is the storehouse of energy. It gives us energy. The foods which are rich in carbohydrates, those foods gives us energy. Okay. Then we have fats. Fats also provides us energy, but they are the storehouse of energy. When we do not eat food for long periods, then these fats which are stored in our body in the form of energy, the fats are burned and energy is produced from the fats. Okay. Fats are of two types: saturated fats and unsaturated fats. Saturated fats are not much healthy fats because they cause obesity. अगर हम ज़्यादा saturated fat खाएंगे, example घी, butter, okay, these fats can cause us obesity. And some unsaturated fats are vegetable oils. Okay. Next we have proteins. All of you know proteins. Why proteins are essential? Proteins are the building blocks of our body. Our body's growth, different functioning of the organs, our hairs, nails, our body's division, growth, okay, metabolism, everything requires protein. Basically, protein is required for growth and repairing of damaged cells and tissues. Okay. Next we have vitamins. So vitamins are of two types: fat soluble and water soluble. The fat soluble vitamins are stored in the fat tissues of our body. वो हमारे जो fat tissues है वहाँ पे stored रहता है. So we do not need to take them regularly. Such vitamins are vitamin A, D, E and K. Okay. So these are stored in the fat tissues of our body, and our body utilizes these vitamins A, D, E and K when our body needs it. जब हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ता है, हमारे जो फैट्स है वहाँ पे ये विटामिन स्टोर्ड रहता है. तो जब हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, इट टेक्स दिस विटामिन्स फ्रॉम आवर फैट्स और फैट टिश्यूज. Okay. So you know vitamin D, our body can produce vitamin D in the presence of sunlight. Okay. And these vitamins are also present in our diets also, vitamin A, D, E, K. But हर रोज लेना नहीं लेने से भी ये सब विटामिन्स की कमी हमारे बॉडी में नहीं होता है. नेक्स्ट, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. Water soluble vitamins. These vitamins are vitamin B complex, vitamin C, okay, such, etc. So vitamin B complex के अंदर there are various types: vitamin B1, B2, B3, B6, B12 and folic acid. These together 6 vitamins are together known as the B complex vitamins and vitamin C. So the water soluble vitamins are not stored in our body. वो हमारे body में stored नहीं रहते हैं. We need to take them through our food or through our diet.
फूड से हमें वो रेगुलरली लेना चाहिए, नहीं तो इस विटामिन के जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है हमारे बॉडी में उसका कमी हो जाएगा, और कुछ भी विटामिन की कमी होने से हमारे बॉडी में उस कुछ डिजीजेस होंगे। डिजीजेस मतलब बीमारियां। ओके, नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स। नाउ just as vitamins, minerals are also two types. Minerals are also two types. First, macrominerals. Second one, trace minerals. And what are the macrominerals? Calcium, magnesium, sodium. Etc. Or trace minerals, what are the trace minerals? Iron, zinc, copper, iodine, etc. So मैक्रो और ट्रेस, मैक्रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि our body needs these minerals, calcium, magnesium, sodium, potassium, these minerals in large quantities. Okay, so what is the function of calcium? Strong bones, strong teeth. Okay, and function of magnesium also. Then sodium and potassium. Sodium and potassium हमारे बॉडी में क्या करते हैं? जो फ्लूइड है, फ्लूइड को बैलेंस रखते हैं। जो खाते हो ना वो ORS खाते हो ना, जब डिहाइड्रेशन होता है, मतलब जब डायरिया वगैरह होता है या बहुत वाटर लॉस होता है बॉडी से, वी ईट व्हाट? इलेक्ट्रॉल, ORS पीते हैं ना। ORS में सोडियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रेस मिनरल्स। व्हाई ट्रेस? ट्रेस मतलब जो मिनरल्स हमारे बॉडी में कम मात्रा में चाहिए, उसी मिनरल्स को हम बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। एग्जांपल्स आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, एटसेट्रा। नेक्स्ट वी हैव राफेज और डायटरी फाइबर्स। So roughage or dietary fibers are those जो we get is roughage and dietary fibers from the vegetables, from fruits. So what their main function is to provide us dietary fibers. अभी dietary fiber क्या है? जैसे आपका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ओके, तो इन द सेम वे dietary fibers are also components of food. Okay, so roughage, जो raffages है, they do not provide us much more nutrients, but they are rich in dietary fibers. And dietary fibers का काम क्या है? It helps to maintain a healthy digestive system. हमारे जो डाइजेशन है, जो फूड को जो हजम करने का शक्ति है हमारे बॉडी का, वो बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव वाटर। वाटर, यू नो, ऑलमोस्ट हमारा बॉडी वेट का जो 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। सो वाटर क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन डाइजेशन। फूड को, जो खाना हम खाते हैं उसको हजम करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस आवर बॉडी, ओके। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड्स के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो आपका फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। देन इट हैव्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। देन फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस सच एज डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, ओके। डाइजेशन जो हमारा फूड को हजम करने में हेल्प करता है, एंड एक्सक्रीशन मतलब
हमारे बॉडी में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस बनते हैं जो हमें नहीं चाहिए बॉडी में, जैसे यूरिन, फेसेस, ये सब वाटर की मदद से हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। जो सब अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो सब जिस सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी में जरूरी नहीं है, वो सब सब्सटेंसेस हमारे बॉडी से थ्रू एक्सक्रीशन विथ वाटर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यू टॉपिक, आई विल स्टार्ट बैलेंस डाइट। So, what a balanced diet is, everyone see in page number 28 of your book. Diet means what? Our food. हमारे फूड में हम जो जो चीज़ें खा रहे हैं उसी को डाइट बोलते हैं। ठीक है, और बैलेंस्ड मतलब संतुलन। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। ओके, फूड ऐसा चीज़ है, अब ज़्यादा खाओगे तो भी उसका कुछ साइड इफेक्ट्स है, कम खाओगे तो भी हमारे बॉडी में कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की और जो विटामिन मिनरल्स का डिफिशियंसी होगा, मतलब कमी होगा, और कमी की वजह से बहुत सारे बीमारियां भी होते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे, डिफिशियंसी डिजीजेस में है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज बैलेंस डाइट। ऐसा खाना जिसमें भरपूर मात्रा में, a diet which contains appropriate amount of all the nutrients. What are the nutrients? Proteins, vitamins, carbohydrates, fats, minerals. Okay, ऐसा फूड आइटम्स जिसमें ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड भरपूर मात्रा में हो, जितना एक हेल्दी इंसान को चाहिए, that diet is called a balanced diet. Okay, now see, हमारे बुक में डेफिनेशन क्या है? A diet that contains adequate amount of different nutrients in the right proportion along with roughage and water. Roughage, I have explained you what is roughage. Dietary fibers है, वो भी एक फूड कंपोनेंट है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड वाटर। सो ऐसा नहीं कि आप फूड्स खा लिया, बहुत बैलेंस डाइट खा लिया लेकिन वाटर नहीं खाया, ऐसा भी नहीं है। A healthy person needs 2 to 3 liters of water every day. If you can consume above 2 liters or 3 liters, it's also good, but limited is 2 to 3 liters. So, a balanced diet must include carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and fibers. Okay, these things should be included in your balanced diet. Next, deficiency diseases. See, now what we have next, deficiency diseases. Deficiency मतलब कमी, और diseases मतलब बीमार। So पोषण की कमी से, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको हम बोलते हैं क्या? डिफिशियंसी डिजीजेस। न्यूट्रिएंट्स की कमी कैसे होगा? अगर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स अगर भरपूर मात्रा में नहीं होगा, अगर हम क्या बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, तो बैलेंस डाइट ना खाने की वजह से हमारे शरीर में कुछ कुछ बीमारियां दिखाई देगा, और उस बीमारियां को, एंड दोज डिजीजेस वी कॉल दोज डिजीजेस एज डिफिशियंसी डिजीजेस। क्योंकि वो डिफिशियंसी मतलब जो फूड हमारे बॉडी को चाहिए था वो मिला नहीं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए था उसको वो मिला नहीं,
न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के वजह से जो बीमारियां हुई है उन बीमारियों को that diseases we call as deficiency diseases. we'll we'll learn them one by one. Firstly, your page number 20, lack of carbohydrates, proteins, vitamins or minerals in the diet can cause diseases. Diseases that are caused due to the lack of nutrients in the diet over a long period of time are called deficiency diseases. ये ऐसा नहीं हुआ कि जो डिफिशियंसी डिजीजेस है वो हमें एक दिन में हो जाए या दो दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता. ओवर ए लॉन्ग पीरियड्स. सपोज विटामिन सी हमें फ्रूट से मिलता है. फ्रूट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी. लेमन, ओके, ऑरेंज, मौसम्बी, मैंगो में भी होता है. ओके, सो दिस साइट्रस फ्रूट्स मेनली विटामिन सी. नाउ अगर विटामिन सी हमारे डाइट में बहुत दिन तक हमने विटामिन सी है ऐसा कुछ फूड्स नहीं खाया, देन विटामिन सी का अभाव होगा हमारे बॉडी में. विटामिन सी का डिफिशियंसी होगा. ओके, देन deficiency of vitamin C, we have another topic in there, scurvy. कुछ disease होता है scurvy. Then loosening of teeth और gums. हमारे gums जो हमारे दांतों के gums है वो लूज हो जाते हैं. तो gums लूज होने से क्या होता है, हमारा जो gums है दांत का जो ये सब gums है उसमें teeth तो वहीं पे लगा हुआ है. The teeth are embedded in the gums. So if gums becomes loose, the teeth also becomes loose. And there another condition occurs called the bleeding gums. Bleeding gums मतलब जो हमारे gums है दांत के वहाँ पे blood आ जाते हैं और हमारे जो gums है वो फूल जाते हैं, उसमें सूजन आ जाते हैं, swelling आ जाता है. That is called bleeding gums. और deficiency of vitamin C, अगर ज़्यादा दिन तक विटामिन सी हमारे बॉडी में नहीं रहा तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो डिजीज के अगेंस्ट, हमारा जो किसी बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने का जो क्षमता है हमारे बॉडी का, that capacity of our body, immunity power decreases due to lack of vitamin C in our diet. Okay, next what we have? Next we'll see one by one. Deficiency of carbohydrates. First we have carbohydrates are the main source of energy. सुबह को आप जब स्कूल जाते हो तो ज़्यादा क्या खाते हो, मतलब ज़्यादा which food you eat in large amount? Rice or someone made roti. That rice or roti is the source of carbohydrate. Potato. Okay, so if you do not eat anything throughout the day, any carbohydrate food, then at the end of the day what you feel? You may feel weak, no energy, no stamina to do work, no energy to move around, no energy to play. Okay, so lack of carbohydrates, what? Carbohydrates are the main energy sources. You see in your book, lack of carbohydrates in the diet results in the lack of energy and stamina. Okay, so carbohydrates हमारे फूड में अगर नहीं रहा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा. ठीक है, एनर्जी नहीं मिला तो हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे, पढ़ने को मन नहीं करेगा, खेलने को मन नहीं करेगा, स्कूल जाने को मन नहीं करेगा. ठीक है, देन वी हैव डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स. अभी बोलता है ना, कॉम्प्लेन खाओ, हॉर्लिक्स खाओ तो जल्दी आप बड़े हो जाओगे, मिल्क ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा ताकतवर बनोगे. ओके, सो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस फूड्स में प्रोटीन भरपूर रहता है. प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी.
हमारा बॉडी का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, एवरीथिंग बॉडी डेवलपमेंट के लिए जितना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए दैट इज in the protein itself. Okay, so growing children needs more protein in their diet. So in comparison to an old man मतलब a young man, an elder man, जो those who are growing children means those who are a newborn baby or your class 6 children, you are growing bigger and bigger, no, you अभी आप class 6 में हो, next year will be in class 7, so you are good, getting bigger, and सिर्फ बिगर बनने से नहीं होगा, you have to be stronger, healthier, okay, mentally fit and fine, physically fit and fine. तो for that you need a good amount of protein in your diet or in your food. Now lack of proteins in the diet weakens muscles. So अगर डाइट में खाने में प्रोटीन नहीं रहा तो मसल जो है हमारा, मसल्स वीक हो जाएगा, हमारे बॉडी में कुछ काम करने का ताकत नहीं रहेगा, नो एनर्जी टू प्ले, नो स्टेमिना टू डू वर्क. ओके, नाउ deficiency of protein leads to a disease called kwashiorkor. दिस इज ए डिजीज, एक बीमार है, ये बीमारी है क्वाशियोरकोर. नाउ सी, क्वाशियोरकोर होने से क्या होता है, ये बीमारी मेनली चिल्ड्रन में होते हैं, दोज चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. देयर व्हाट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट. यू सी, this is the picture of a baby boy. See, due to the deficiency of vitamin, इसका जो पेट है, deficiency of protein, पेट है ऐसा बाहर निकल जाएगा. ओके, फिर जो development of hand, feet, body, everything will be hampered. Okay, see, okay. स्वेलिंग ऑफ फेस, लिम्स, स्पेशली फीट, जो हाथ पाँव है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, वो फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा उसमें. स्किन डिजीजेस, स्किन की बीमारियाँ होगा. स्किन मतलब हमारा जो छाल है बॉडी का, स्किन डिजीजेस विल ओकर. देन मेंटल डिजीजेस, वो मेंटली वो पढ़ नहीं सकेगा, ही वोंट बी एबल टू रीड, ही वोंट बी एबल टू राइट. ओके, मेंटल इलनेस, मेंटली ही विल नॉट बी strong enough. Okay, next, and diarrhea. You know what is diarrhea? Loose motion. So if treatment started in time, improving protein intake may correct this disease. So अगर क्वाशियोरकोर किसी बच्चे को हुआ भी, अगर इन टाइम ट्रीटमेंट किया जाए, समय रहते ही वो उसको ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन फूड्स खिलाया जाए, तो ये बीमारी ठीक भी हो सकता है. ओके, then one another marasmus is a common among infants, children under 5 years. So a child suffering from marasmus become very thin, shows slow body growth, lack of energy, loss of appetite, weak legs, mental retardation, and poor muscle development. See, kwashiorkor, this is the first disease due to deficiency of proteins, and second marasmus. ये भी एक बीमारी का नाम है, जैसा क्वाशियोरकोर था ऐसे भी एक बीमारी का नाम है. तो मारास्मस बीमारी में क्या होता है, द चिल्ड्रंस बॉडी बिकम्स लीन एंड थिन. ओके, सो क्वाशियोरकोर में जैसा एकदम पेट बाहर निकल आता था, हाथ पैर में सूजन आ जाता था, स्वेलिंग इन द हैंड्स एंड फीट, स्किन डिसऑर्डर. मारास्मस में क्या होता है, ये भी प्रोटीन के कमी के वजह से होता है. यह मारास्मस में क्या होता है, becomes very thin, slow body growth. आपका जो बॉडी है, जो एक बच्चे का जो बॉडी है, वो बहुत तुरंत ग्रो करता है in comparison to an older man or elderly people. Younger people grows very fast. This is why they need much more protein in their diets.
सो मरसमस होने से क्या होता है, एक बच्चे का जो बॉडी ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है. लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं मिलेगा आपको कुछ काम करने के लिए. लॉस ऑफ एपिटाइट. एपिटाइट क्या है? एपिटाइट हमें जो भूख लगता है ना उसको हम एपिटाइट बोलते हैं. अभी लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब उसको भूख नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा. ठीक है. वीक लेग्स, लेग कमजोर होगा, वो अच्छा से चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा. ठीक है. मेंटल रिटार्डेशन मतलब उसका जो मेंटल ग्रोथ है, मतलब जो मानसिक विकास है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, डेवलपमेंट ऑफ माइंड नहीं होगा उसका. वो पढ़ नहीं सकेगा, लिख नहीं सकेगा, किसी को अच्छे से पहचान नहीं सकेगा, वो कुछ बोल नहीं सकेगा. आप उसको कुछ काम करने को बोलो या कुछ पढ़ाई दो, वो उसको याद नहीं रख सकेगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन. मतलब मेंटल कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगा या बिगड़ जाएगा. ठीक है. एंड पुअर मसल डेवलपमेंट. सो यू नो, for development of our muscles we need protein in large quantities. So अगर प्रोटीन नहीं मिला तो मसल डेवलपमेंट भी नहीं होगा. ठीक है. So these are the diseases. We have two diseases, kwashiorkor and marasmus. These are the two diseases जो क्यों होते हैं? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन हमारे डाइट में अगर और फूड में अगर नहीं हो या कम मात्रा में हो, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उससे कम मात्रा में हो, तो ये सब बीमारियां हमको होता है. ठीक है. ओके. सो it's almost half an hour session we have covered today. We have two or more things. Deficiency of vitamins. विटामिन की डिफिशियंसी, विटामिन अगर हमारे बॉडी में जितना चाहिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं रहा तो क्या बीमारियां होता है. व्हाट आर द डिजीजेस. डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स. इफ मिनरल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट इन आवर डाइट, then also we may suffer from various kinds of diseases, deficiency diseases. And deficiency of water. Okay, if water is not taken in optimum or in regular amount जितना बॉडी को चाहिए, तो उसके लिए भी क्या बीमारी होते हैं, that will be covered in our next session. So children, I hope this video was informative to you. You go through the video, then after going through the video you go through the lesson. सभी जो टॉपिक से एक बार आप खुद से पढ़ो. इसका जो क्वेश्चन आंसर से आई विल बी गिविंग यू in your next classes. So for today this much only. Stay home, stay safe and stay healthy and eat balanced diet. Thank you.